Very good afternoon, everyone. My name is Aksham, and today we'll have a training on ATPBMS pre-counting. Okay, ATPBMS pre-counting. So, सक्षम जी गुड आफ्टरनून। good afternoon, sir. यूपी से बोल रहा हूँ मैं और Sir, हमारे मेरिट डीएम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ऑल अच्छा, इंडिया सर्विस में मुख्य निर्वाचन उत्तर प्रदेश आता है। DM Merit connected है, sir. ये आपस में DM Merit, are you connected? हाँ हाँ मैं कनेक्टेड हूँ, आप कनेक्ट हो गए। जी. थैंक यू। Okay, thank you. Okay, I think we can start now. थैंक यू। हाँ Okay. I request everyone to please mute your mic. PCI admin, please ensure to keep the other users mic on mute except mine and Saksham. जो भी ECI टीम नेटवर्किंग टीम से मीटिंग हैंडल कर रहा है, प्लीज आप सक्षम का माइक छोड़ बाकी सारे माइक्स को ऑफ रखिएगा। Okay, thank you, sir. So, what is ATPBMS pre-counting? It is basically the verification and validation of the ballot paper that you have transmitted online. So, as you all know, you have successfully transmitted the ballot paper online, and by now you must be receiving back the ballot papers, right? So, for ATPBMS, the counting process includes two stages. Okay, one is pre-counting, wherein you have to do the scanning of Form 13A, B, and C. And another is counting, okay, counting of the actual ballot. All right. Counting of the actual ballot. I would please mute your mic, everyone. क्या Ramakant ji. रमाकांत पालीगंज। हाँ हाँ सर। आपको कुछ बोलना है? आपने माइक क्यों ऑन कर रखा है? I request everyone to please mute your mic. If you are not able to do so, please leave the meeting. आप खुद तो सुन नहीं रहे हैं, बाकी जो सुन रहे हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। All right. So there are two stages of ATPBS counting. One is pre-counting, wherein you have to do the scanning of Form 13 ABC, and another is counting. All right. So we'll be talking about pre-counting only right now. So what are the requirements for ATPBS pre-counting? The very first one is we have to have a desktop, laptop with Windows 7 and above. Okay. Then you have to have one QR code scanner with manual trigger mode. I please request everyone to please mute your mic, and those who have joined with mobile phone, please leave the meeting immediately. Either go to RO office or DM office and sit there and join with them. So you have to get one desktop or laptop with Windows 7 and above, one QR code scanner with manual trigger mode. It is very important. Okay, what do you mean by manual trigger? So in QR code scanners, there are two mode. Okay, one is auto mode and one is manual trigger mode. In auto mode, what will happen when you point? Nilesh, Nilesh.
आप लोग से रिक्वेस्ट है, माइक चेक कर ले अपना अपना, म्यूट है कि नहीं है। द कोऑर्डिनेटर फ्रॉम ईसीआई जो भी अपना माइक अनम्यूट कर रहे हैं उनको एग्जिट करवा दीजिए इमीडिएटली। उनको एग्जिट कर दीजिए जो भी माइक अनम्यूट कर रहे हैं अपना। चालू करू का म्हणतात व्हिडिओ आणि माईक अमित कुमार, अमित कुमार, यस सर। आपने माइक क्यों अनम्यूट कर रखा है अपना? सर अनम्यूट नहीं किया है। आपको कुछ बोलना है? सॉरी सर। जगमोहन, संगीता, ये वन प्लस से किसने ज्वाइन किया है मोबाइल से? प्लीज एग्जिट करिए आप। अमित कुमार, आपको कुछ बोलना है क्या? I would request every CO office to check if they are from your state. Please ask them to leave. They are not interested in the training. And later on, they will be calling up and asking what to do. कैसे स्कैन करना है, कहाँ स्कैन करना है? All right. So QR code scanner, it should be on manual trigger mode. So what is manual trigger mode? It is when you click the button, okay, when you click or pull the trigger on the QR code scanner, only then it will be activated and it will scan the QR code that is placed in front of that scanner. But if it is on auto trigger mode, it will be on always, and whatsoever QR code barcodes come in front of that scanner, it will scan it. So please note, it should be on manual trigger mode when you are using for the pre-counting. All right. Ensure power backup and UPS as well for the systems. Wired internet connectivity and minimum 10 Mbps, 10 to 20 Mbps for each system. Stationary items like pencil and rubber, etc. So here, this document CO office will be sharing with you. The very first page is very important. Okay, please take care of this page. It is you have to follow each and every word written in this document, and the rest of the steps are the scenarios, or you can say steps for pre-counting. What all cases can arise. Okay. So point to be taken care at the time of pre-counting of e-postal ballot. So again, only QR code scanners should be used for pre-counting. Sometimes some of the ROs, they will come up with the barcode scanner, okay? Please do not use barcode scanner. QR code scanner is a two-dimensional scanner, and you have to use QR code scanner for the pre-counting. And all the QR code scanner must be tested on demo site before the day of counting, okay? Right now, demo portal is available. You can right away go and check with your QR code scanner whether you are able to scan it or not. And the QR code scanner must be in manual trigger mode. All right. Scanning will be enabled at 8 a.m. on the day of counting. Please note, it will be enabled at 8 a.m. Many of the counting supervisors, they will start logging in and they will start shouting, screen nahi aa rahi hai, it is not visible, kahan pe karna hai, kya karna hai, still. So don't worry, after 8 a.m., refresh the page and it will be enabled. All right.
Suitable sitting arrangement for one agent for each candidate may also be made within the room for them to watch the process of QR code reading. All RO counting supervisors should log in one day before the counting. उसको दे, बहुत दिन हो गया खत्म कर राजेंद्र मेहर, सर। आपको कुछ बोलना है? आप पढ़ाओगे आके? स्क्रीन शेयर है, आप आके ट्रेनिंग दे दो। वीसी के बाद आप ही कॉल करोगे, ये समझ में नहीं आया ये कैसे है वो कैसे है। Okay, so the ARO appointed for pre-counting should be well trained. Just a second. All RO counting supervisors should log in one day before the counting and set their password. Okay, so it is very important that CO office will create the counting supervisors login. So you please log in before the day of counting on etpbms.in. Okay, sorry, etpbms.eci.gov.in, and set your password beforehand. Write it somewhere so that on the day of counting you don't come up and say that, okay, I forget my password, this and that. So please ensure that you have set your password before the day of counting. The ARO appointed for pre-counting should be well trained. Okay, and the pre-counting ARO will check each of the EPBs in the invalid ballot tray and mark them accordingly with reason. So what is the task of ARO? So basically for 10 counting supervisors, you can appoint one ARO who will guide and monitor these counting supervisors. And if there is any duplicate or invalid EPB marked by the system, then ARO should come and check whether it is correct or not. And then they have to mark it accordingly and put it in the invalid tray. Scanning to be done in the order CAB, Form 13C, then Form 13A, and then Form 13B. All right. The counting supervisors and counting assistants should be well trained regarding the scanning of C, A, and B, and should be familiar with all type of scenarios. So just below this page, you can see all the scenarios are there. Okay. And they only need to do the scanning of QR codes. They will not deal with the validity of any document related to e-postal ballot. The validity of e-postal ballot will be checked by the counting ARO, or you can say RO on the counting table. What does it mean? It is very important. You'll be appointing counting supervisors. So many of these supervisors will be very smart, will be very brilliant, and they will come up and say, sir, I have conducted n number of countings. I know very well. Last elections also I have done the counting, and I know if the signature of elector or attesting officer is not present on Form 13A, then the ballot is invalid. If the signature is not present on the outer envelope, or the envelope is not sealed, then the ballot is invalid. So I'm marking it as invalid. You should not do so. Okay. The scrutiny of the ballot will be done by the RO or counting ARO. The counting supervisor should only scan Form 13 ABC and then place in the valid or invalid tray as per the alert given by the system. Scrutiny of EPB will be done by the RO, counting ARO. Never change the mobile number. Please do not change the mobile number till the counting are over or elections are over. Okay. You have to keep two separate trays, one for valid ballot and one for invalid ballot. All right. And important note, after completing the scanning of all received EPB, RO has to log in on ETPBMS and mark scanning as completed. Okay, please note, all the ROs, please note, after the scanning is completed, for all the received EPB, you have to log in on ETPBMS and mark scanning as completed. So of course, the scanning will be done by the counting supervisors.
So after all this scanning has been completed for all the ballot paper that you have received, you have to mark it as completed. And along with it, you have to enter few details such as total number of EPB received till 8 a.m. and after 8 a.m. on the day of counting, and total EPB rejected without scanning. So I'll tell you what you have to enter exactly in this columns. Note that once scanning is marked as completed, no further scanning can be done. And you can only start the counting of EPB only after marking scanning as completed. So it should not be like you have scanned the ballot, the system has shown you that it is a valid ballot, you can immediately take it to the counting table. No, you cannot start the counting of e-postal ballot until unless you have completed the scanning of all the ballot that you have received. All right. Now next is the step of pre-counting of ATPBS. Okay. So the very first scenario is the normal scenario wherein you are able to scan C, A, and B, and accordingly you mark that ballot as a valid and you keep it in the valid tray. So I will show you each and every scenarios. First scenario is the normal scenario. Second is if the QR code available on Form 13C is damaged and cannot be scanned, then what you have to do? That I'll explain you. If the QR code available on Form 13A is damaged and cannot be scanned, then what you have to do? If 13B is damaged, then what you have to do? Okay. If A or B is not found, okay, inside the envelope, then what you have to do? Or if A and B and or is not cannot be scanned and 16-digit EPB ID is also not readable, then what you have to do? And the last case is in case of duplicate, what you have to do? All right. So I'll just start with the demonstration directly. Okay. Okay. So on the day of counting, what you have to do is you have to click on this returning officer, and if you are counting supervisor, you can click on this counting supervisor. So I'm logging in as a returning officer. All right. One more important thing is we'll be giving a box here. Okay, one more box will be giving here by tomorrow maybe. Okay, there all the arrows you have to fill. You have to log in daily and you have to fill the total number of EPB that you have received. Okay, till date, and it should be cumulative figure. All right. So suppose today till today you have received 50 ballots, then you have to enter here 50 and you just save it, just update it. Okay. And tomorrow you have received 5 more, then you have to write 55, then just save it. Please do not write only 5. Okay. If you write 5, only 5 will be updated. So you have to write 55 and you just need to update. By tomorrow, it will be visible at your login in this place. Okay. So now on the day of counting, what you have to do is you have to go to this pre-counting. When you go to this pre-counting, it will be visible like this. So do not panic. It will be enabled at 8 a.m. on the day of counting. All right. Then here it is given test here, your QR code scanner as well. Just click on this, scan this QR code and check whether your QR code scanner is working properly or not. Because in one of the previous elections, one of the QR code scanner was not able to read S. Okay, a character called S and some more character like 2 or 3. And therefore, it was marking all the ballot as invalid. Even though the ballot was correct, it was marking as invalid because it was not giving the proper result after scanning the QR code. So please scan this QR code, check whether it is working fine or not. All right. Before proceeding with your pre-counting. So on the day of counting at 8 a.m., just go and refresh. All right.
Just go and refresh it. So now what you have to do is you have to scan form 13C, form 13A, then form 13B. Okay. Saksham sir, Yes. just a request. I think for today's training, na, most of the states are Hindi speaking. So please insist on the major points in Hindi also. Okay. Sure. Like, जो भी details हैं, important points के वो हिंदी में please बता दीजिए. ठीक है. Sure. All right. ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं. जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो आपका QR कोड स्कैनर है वो मैनुअल ट्रिगर मोड में होना चाहिए. ठीक है, जैसे मेरे पास अभी QR कोड स्कैनर है. तो मैनुअल ट्रिगर मोड क्या होता है? जब आप QR कोड स्कैनर को अपने सिस्टम से कनेक्ट करेंगे और इसमें एक बटन होता है, जब उसको दबाएंगे तभी वो काम करेगा, उसको बोलते हैं मैनुअल ट्रिगर. और एक ऑटो मोड में होता है जिसमें वो ऑन ही रहता है. आप कहीं भी उसको लेके जाइए किसी भी QR कोड बार कोड के सामने, वो उसको स्कैन कर देगा. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसा होगा तो क्या होगा, मे बी आपने एक बैलेट उठाया और आपका स्कैनर जो है ऑटो ट्रिगर मोड में है, तो मान लीजिए सिस्टम रखा हुआ है पास में और भी कुछ चीजें रखी हुई है, फोन Saksham ji, sorry for the interruption. Please be in English. No, sir, I have already explained this part in English. I'm just repeating it in Hindi. Oh, fine. Okay, yeah. So उसमें क्या होता है, मैनुअल ट्रिगर अगर वो ऑटो मोड में है तो आपके डेस्कटॉप पे कुछ भी पड़ा होगा, ठीक है, कुछ भी पड़ा होगा आप, तो वो उसको स्कैन कर देगा, सिस्टम में नॉट इशूड बाय द सिस्टम मार्क कर देगा, इनवैलिड मार्क कर देगा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका QR कोड स्कैनर जो है मैनुअल ट्रिगर मोड में होना चाहिए. जब मैं इसका बटन प्रेस करूं तभी ये स्कैन करे. ऑलराइट. अब नाउ ऑन द डे ऑफ काउंटिंग, ठीक है, हाउ यू हैव टू स्कैन the counting supervisors, you have to do scanning of form 13C first, followed by form 13A, then form 13B. आपको पहले फॉर्म 13C स्कैन करना है, फिर A स्कैन करना है, फिर B स्कैन करना है. ठीक है. So pick first ballot. What you have to do first is the normal scenario. So you pick the first ballot, scan form 13C. Okay, I'll just scan form 13C. All right, so you can see it is a valid. So if system is showing it is valid, you can tear off the envelope. तो आपको स्कैन करना है फॉर्म 13C, और उसको स्कैन करने के बाद अगर यहाँ पे वैलिड दिखाता है तो आपको उस लिफाफे को फाड़ना है. So once you tear off the envelope, you will get two things. Okay, one is form 13A और फॉर्म 13B. तो आपको 13A और 13B मिलेगा उस एनवेलप के अंदर. यहाँ पे क्लिक करिए, just go and click here and then scan form 13A and form 13B. So first of all scan form 13A. उस पे 2 QR कोड है. Okay, there are 2 QR codes on form 13A. You can scan any QR code in any order. Okay, but you have to scan both the QR codes. So I'll scan form 13A. The next QR code. Okay, again it has shown as valid. Valid mark हो गया. Go to form 13B. Pick form 13B. Now scan form 13B. भाई सक्षम जी. अरे इसको थोड़ा सा स्लोली चलाओ. बहुत तेजी जी. से चलोगे तो फिर हमारे यहाँ लोग समझ नहीं पा रहे हैं. ठीक है सर, श्योर. एक बार हम भी थोड़ी देर पहले ज्वाइन किए, एक बार पिछले बार थोड़ा सा बता दो इसको. जी फिर से बता देते हैं सर आपको. ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ. ये जैसे एक बैलेट वैलिड हो गया तो आपको इसको वैलिड ट्रे में रख देना है. फिर से दूसरा बैलेट उठाना है. ठीक है, दूसरा बैलेट उठाना है. उस बैलेट पे सबसे ऊपर क्या होगा आपका फॉर्म 13C. ठीक है, आउटर एनवेलप, इट विल बी फॉर्म 13C. ओके, यू हैव टू स्कैन फॉर्म 13C फर्स्ट. पहले स्कैन करना है आपको फॉर्म 13C. स्कैन किया आपने, एक सीरियल नंबर जनरेट हुआ. ठीक है, देखिए स्कैन करते एक सीरियल नंबर जनरेट होगा. उस सीरियल नंबर को फॉर्म 13C पे आपको लिखना है. ठीक है, you have to write that serial number on form 13C, that is the outer envelope. And since the system has shown as valid, okay, system ने उसको valid बताया है, इसलिए अब आप उसको क्या करोगे, tear off करोगे, फाड़ोगे इस envelope को. अब उसको फाड़ोगे तो आपको उसके अंदर दो चीजें मिलेंगी, form 13A और form 13B. What you will get? Form 13A and form 13B. So now you can scan form 13A.
फॉर्म 13A पे 2 QR कोड होते हैं, आपको दोनों स्कैन करना है, किसी भी ऑर्डर में आप स्कैन कर सकते हैं, राइट? You have to scan both the QR code in any order, but you have to scan both the QR code. So I went to form 13A, scan the first QR code, the next QR code. Again, सिस्टम ने उसको वैलिड कहा और एक सीरियल नंबर जनरेट किया. आई विल राइट दैट सीरियल नंबर ऑन फॉर्म 13A. ठीक है, फॉर्म 13A पे भी यही सीरियल नंबर लिखना है. और क्योंकि इसने वैलिड बोला तो अब हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे, फॉर्म 13B. तो अब फॉर्म 13B उठाइए उसका. सर वो सीरियल नंबर नहीं दिखाई पड़ रहा है, जरा सा स्क्रीन ऊपर किया जाए सर. सर स्क्रीन ऊपर ही है, ये देखिए यहाँ पे है सीरियल नंबर. विजिबल है? जी हाँ सर, हाँ ठीक, थैंक यू. ठीक है, हाँ ये सीरियल नंबर है यहाँ पे. तो अब फॉर्म 13B पे गए और उसका फॉर्म 13B आपने स्कैन किया. ओके, यू हैव स्कैन फॉर्म 13B. यहाँ पे भी देखिए आपका क्या सीरियल नंबर जनरेट हुआ. सीरियल नंबर आपको फॉर्म 13B पे लिखना है. अब क्योंकि स्कैनिंग के दौरान आपका C, A और B तीनों के लिए सिस्टम ने वैलिड बोला. ठीक है, तीनों के लिए सिस्टम ने वैलिड बोला, इसका मतलब वो बैलेट वैलिड है. तो आपको वापस से A और B को C के अंदर रखना है. ठीक है, वापस से A और B को C के अंदर रखना है और उस C लिफाफा जो वैलिड है उसको वैलिड ट्रे में रखना है. तो आपने पहला स्कैन किया, वैलिड में रख दिया, वैलिड ट्रे में. दूसरा स्कैन किया, फिर से वैलिड हुआ, वैलिड ट्रे में रख दिया. तो आपके पास 2 ट्रे हैं, वैलिड ट्रे, इनवैलिड ट्रे. ठीक है, तो अभी हमने वैलिड ट्रे में रख दिया. तो ये हमारा पहला सिनेरियो था जो नॉर्मल, ऑफ कोर्स नॉर्मली होगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट दूसरा बैलेट उठाया. अब जब मैंने दूसरा बैलेट उठाया तो क्या हुआ, अनदर सिनेरियो. ठीक है, अब जो फॉर्म 13C है, आपने देखा होगा जो आप लोग के पास आए हैं, दैट यू हैव रिसीव्ड ऑन फॉर्म 13C द QR कोड माइट बी डैमेज्ड. ठीक है, पोस्टल डिपार्टमेंट ने स्टैंप लगा दिया हो या टर्न आउट हो गया हो, कोई भी रीजन हो सकता है, वो स्कैन नहीं हो पा रहा. आपका जो फॉर्म 13C पे जो QR कोड था वो स्कैन नहीं हो पा रहा है. So next scenario is, if you are not able to scan the QR code on form 13C, then what you have to do? Then what you have to do? You have to tear off the envelope. ठीक है, आपको एनवेलप फाड़ना है और उसमें से फिर से वही 2 चीजें निकालनी है, फॉर्म 13A और फॉर्म 13B. ठीक है, तो फॉर्म 13A पे क्या होता है, इलेक्टर का नाम लिखा होता है, उसका एड्रेस लिखा होता है. तो आपको वो नाम देखना है और यहाँ पे क्लिक करना है, ऐड इलेक्टर मैनुअली. इफ यू आर नॉट एबल टू स्कैन फॉर्म 13C, यू हैव टू ऐड इलेक्टर मैनुअली. और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे टेक्स्ट बॉक्स आएगा. ठीक है, यहीं पे नहीं आएगा, नीचे टेक्स्ट बॉक्स आएगा. यहाँ पे आपको 3 से ज्यादा कैरेक्टर टाइप करना है. तो मैंने फाड़ लिया ये वाला बैलेट, उसका फॉर्म 13A निकाला और मैं इलेक्टर का नाम लिखता हूँ. ठीक है, तो ये आ गया इसका, यही वाला इलेक्टर, इसी का नाम लिखा हुआ, यही एड्रेस है इसमें. तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया. ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन ऐड. ये क्या हुआ, ऐड हो गया. और यहाँ पे एक सीरियल नंबर जनरेट हुआ. इस सीरियल नंबर को आपको फॉर्म 13C पे लिखना है. एंड देन you have to move to next form 13A and proceed the scanning as usual. तो फॉर्म 13A पे तो QR कोड था, मैं उसको रीड कर पा रहा हूँ, उसको स्कैन कर लेते हैं. ठीक है, देन यू मूव टू फॉर्म 13B. इस पे भी QR कोड है, इसको भी स्कैन कर लेते हैं. ठीक, तो आपका पहला सिनेरियो था कि आपने CAB स्कैन किया. ठीक है, दूसरा सिनेरियो था कि आपने, ठीक है, कि आपका फॉर्म 13C जो है आप स्कैन नहीं कर पा रहे थे. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप फॉर्म 13C स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, आपको लिफाफा फाड़ना है. ठीक है, लिफाफा फाड़ना है, उसमें से फॉर्म 13A निकालना है. उस फॉर्म 13A पे इलेक्टर का नाम और एड्रेस दिया रहेगा. आपको ऐड इलेक्टर मैनुअली में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है. 3 कैरेक्टर्स आएंगे. ठीक है, 3 कैरेक्टर से ज्यादा आपको लिखना है. सर्च होकर आपके पास लिस्ट आ जाएगी, चेक कर लेना है कि whether it is matching or not, and then you can proceed.
ओके, एंड देन यू कैन प्रोसीड। और फिर आपका फॉर्म 13A और फॉर्म 13B आपको स्कैन करना है। ठीक, तो ये हमारा तीसरा बैलेट हमने स्कैन कर लिया। अब चौथा बैलेट उठाया। नेक्स्ट सिनेरियो क्या है कि फिर से चौथा बैलेट उठाना, यू हैव टू स्कैन फॉर्म 13C। ठीक है, आपने फॉर्म 13C स्कैन किया, यू टीयर्ड द एनवेलप। ओके, यू टीयर्ड द एनवेलप, और आपने उसमें से क्या निकाला, फॉर्म 13A और फॉर्म 13B। You take out form 13A and form 13B. Next scenario is wherein you cannot scan form 13A. कि आप फॉर्म 13A स्कैन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि क्यूआर कोड डैमेज है फॉर्म 13A पे। बट प्लीज नोट, ऐसा होगा नहीं कि फॉर्म 13A और फॉर्म 13B का क्यूआर कोड आप स्कैन ना कर पाए, क्योंकि ऑफ कोर्स वो लिफाफे के अंदर बंद होगा, तो वो डैमेज नहीं हो सकता, राइट। बट बाई चांस, केस तो कुछ भी हो सकता है, इन केस आप फॉर्म 13AB स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको ऐड इलेक्टर मैनुअली करना है। ठीक है, यहाँ पे फिर से आपको क्लिक करना है, टाइप करना है, उस फॉर्म 13A पे इलेक्टर का नाम दिया रहेगा, वो नाम आपको यहाँ टाइप करके सर्च करना है, सेलेक्ट करना है, और 16 डिजिट ईपीबी आईडी रहेगी। ठीक है, 16 डिजिट ईपीबी आईडी रहेगी, वो ईपीबी आईडी आपको एंटर यहाँ करना है मैनुअली, और फिर 8 पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये काम करना है। अगर आप फॉर्म 13A पे जो क्यूआर कोड स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इलेक्टर ऐड करना है मैनुअली, और ईपीवी आईडी मैनुअली ऐड करके उसको ऐड कर देना है। ठीक, सेम केस फॉर्म 13B के लिए नेक्स्ट सिनेरियो, कि अगर आप फॉर्म 13B स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, if you are not able to scan form 13B, then you have to enter 16 digit EPB ID here and just click on that. Okay, for the time being, let us assume कि हम कर पा रहे हैं, so I'll just scan it. But you can test this on demo portal. Okay, डेमो पोर्टल पे आप टेस्ट करके देखिएगा कि आप फॉर्म 13A मत स्कैन करिएगा, डायरेक्टली मैनुअली एंट्री करिएगा, सो यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक, सो ये हमारा दूसरा सिनेरियो था कि ए, और उससे दूसरा सिनेरियो था कि बी स्कैन नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट बैलेट उठाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बैलेट उठाया मैंने, उसका फॉर्म 13C स्कैन किया, वैलिड आ गया। फिर से सीरियल नंबर, ये ध्यान रखिएगा, जो भी सीरियल नंबर आ रहा है, विच एवर सीरियल नंबर द सिस्टम इज डिस्प्लेइंग, यू हैव टू राइट इट ऑन द टॉप ऑफ फॉर्म 13ABC with pencil. Okay, write that serial number. Okay, tier of the envelope tier करिए, उसमें से फॉर्म 13A निकालिए। ठीक है, अब आपने क्या किया, टीयर ऑफ किया, लेकिन उसके अंदर फॉर्म 13A था ही नहीं। All right, when you tear off the envelope, another scenario, form 13A was missing. All right, if form 13A is missing, then what you have to do, you have to just go here and select this. Form 13A is not found, does not exist for the service voter. All right, and another scenario कि अगर आपको फॉर्म 13B नहीं मिलता है, सेम यहां से आपको ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना है। You simply have to select from the drop down that form 13A is not found or does not exist for these service voters. Okay, so let us just select this and just proceed. You want to invalidate this record? I'll say yes. So invalidation done. So यहाँ पे you can see red mark आ गया, form 13A is not found, does not exist for this service voter. So in that case, what you have to do, you have to put back form 13B inside form 13C and place it in the invalid tray. अब यहाँ पे काम आता है ARO का. Okay, here comes the role of ARO. So when any such cases arise, the counting supervisor have to call ARO. Please come and check. See this, we are not able to scan because form 13A is not there and we are marking it as invalid. And thereafter ARO, they have to mark it as invalid and write the reason for marking it is invalid on the back side of form 13C. Okay, on the back side of form 13C, they have to write the reason for invalidation. तो यहाँ पे ARO का काम रहेगा जब भी कोई बैलेट इनवैलिडेट होता है। ठीक है, सेम केस फॉर्म 13B के लिए, अगर इनवैलिडेट होता है, यहां से आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करिए एंड जस्ट इनवैलिडेट इट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट केस। Scan form 13C again.
Right. Form 13C I'll scan, Form 13A also I will scan. Okay. So now I've scanned another ballot, and please see on the screen. Okay, I'm going to scan the same ballot again mistakenly. क्या है कि आपने एक बैलेट स्कैन किया CAB, और आपको एक्चुअली पेंसिल से मार्क करके आपको वैलिड ट्रे में रखना था, लेकिन आपको ध्यान नहीं रहा, आपको लगा कि आपने स्कैन नहीं किया, दोबारा से आपने गलती से स्कैन कर दिया उसमें। तो सिस्टम आपसे पूछेगा, ओके, सिस्टम विल आस्क यू स्कैन QR कोड इज मैचिंग विद द प्रीवियसली स्कैन कोड, आर यू स्कैनिंग द जस्ट स्कैन फॉर्म 13C? If you click on yes, the system will do nothing. But if you click on no, it will mark it as duplicate. Okay. तो अगर आपने नो लिखा, आपने नो पे क्लिक किया, तो वो डुप्लीकेट मार्क कर देगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, कि अगर आपने इमीडिएटली स्कैन जो किया था उसको फिर से स्कैन करते हैं, सो जस्ट क्लिक ऑन यस कि हाँ मैंने वही स्कैन किया, सो इट विल नॉट डू एनीथिंग। अगर मैं नो कर देता तो इसको वो डुप्लीकेट मार्क कर देता। ठीक है, तो ये अनदर सिनेरियो था। Let us scan next ballot. So what it is saying, not issued by the system. तो ये वाला भी बैलेट कहाँ जाएगा? इनवैलिड ट्रे में जाएगा। तो कोई भी ऐसा बैलेट आपके पास आ जाता है जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहीं है, या कुछ भी आ जाता है अनाप शनाप, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करेगा और वो बोलेगा इट इज नॉट इश्यूड बाय द system. So simply write that serial number on form 13C and place it in the invalid tray. So another scenario, another very important scenario in fact. So now I picked another ballot and I'm going to scan form 13C. So अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, डुप्लीकेट स्कैन डिटेक्टेड अगेंस्ट सीरियल नंबर 8,3। तो अभी जो मैंने बैलेट उठाया था वो किसी एक बैलेट के साथ डुप्लीकेट है। कौन से बैलेट के साथ? जिसका सीरियल नंबर 3 है। तो जैसा कि मैंने बताया, आपने सीरियल नंबर लिखा होगा फॉर्म 13C AB पे, और उसके बाद उसको आपने ट्रे पे रखा होगा। तो एज यू हैव पुट इट इन द ट्रे इन सीरियल, सो आपको क्या देखना है, नीचे से तीसरा बैलेट जो है वो आपका सीरियल नंबर 3 होगा ऑफ कोर्स। तो वो बैलेट निकालना है कहां से? वैलिड ट्रे से। ठीक है, उस बैलेट को निकालना है आपको वैलिड ट्रे से, और सीरियल नंबर 8 के साथ उसको टाई अप कर देना है रबड़ से या किसी भी चीज से। एंड दिस इज द टास्क ऑफ ARO, ओके। एंड देन यू हैव टू मार्क इट एज डुप्लीकेट, कि ये दोनों बैलेट डुप्लीकेट है, और उसको इनवैलिड ट्रे में रख देना है। सो इफ यू आर रिसीविंग duplicate ballots, both the ballot will be rejected. All right, both the ballot will be rejected. Another important thing is कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं सीरियल नंबर, मैंने RO से लॉगिन किया था तो मेरे पास सीरियल नंबर आ रहा था 1 2 3 4 5 6 7 करके। जब आप काउंटिंग सुपरवाइजर से लॉगिन करेंगे तो वहां पे काउंटिंग सुपरवाइजर की आईडी आएगी, फॉर एग्जांपल CS_1 CS_2 CS_3। और जब भी डुप्लीकेट अगर डिटेक्ट होता है तो सिस्टम आपको यहां बता देगा, फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट स्कैन डिटेक्टेड अगेंस्ट सीरियल नंबर 3 एंड कॉमा सीरियल नंबर जो आपका फॉर एग्जांपल CS48। इसका मतलब क्या है, जो आपका काउंटिंग सुपरवाइजर है उसका जो सीरियल नंबर 48 वाले पे जो बैलेट है और आपका जो थर्ड नंबर का जो बैलेट है वो दोनों डुप्लीकेट है। ऑलराइट, व्हाट डज इट मीन? The ballot that counting supervisors have at serial number 48 is duplicate with the ballot in your tray with serial number 3. So it will tell you in the system. So in that case also you have to tie both the ballot and put it in the invalid tray. So in that case also both the ballot will be rejected. All right. Now, when you complete the scanning of C, A and B, okay, for all the ballots, सभी बैलेट्स का जब आपका स्कैनिंग कंप्लीट हो जाए तो RO को अपने लॉगिन से लॉगिन करना है। ठीक है, RO को अपने क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करना है, एंड यू हैव टू मार्क हियर, यू कैन सी स्कैनिंग कंप्लीटेड। ठीक है, इसी पेज पे आपका बॉटम पे रहेगा स्कैनिंग कंप्लीटेड, यू हैव टू मार्क दिस। नाउ हियर जस्ट गो एंड क्लिक। अब जस्ट टेल यू वन मोर सिनेरियो, एक और सिनेरियो है। मैंने एक बैलेट उठाया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैंने एक बैलेट उठाया, उसका क्या है,
फॉर्म 13C मैं स्कैन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो डैमेज्ड है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उसको टीयर ऑफ करना चाहिए, राइट। टीयर ऑफ करके उसमें से फॉर्म 13A निकालना चाहिए, इलेक्टर का नाम और एड्रेस के हिसाब से मुझे यहाँ पे सर्च करना है, राइट। बट मैंने क्या किया कि फॉर्म 13C पे तो QR कोड स्कैन नहीं कर पा रहा था, मैंने उसको टीयर ऑफ किया और उसके अंदर फॉर्म 13A था ही नहीं। क्या फॉर्म 13A था ही नहीं, तो अब मैं सिस्टम में कैसे लेके आऊं, वो तो स्कैन ही नहीं होगा, करेक्ट, वो स्कैन ही नहीं होगा। उस केस में आप उसको सेपरेटली इनवैलिड ट्रे में रखिए, ठीक है, और उसको अलग से डायरी में कहीं पे भी नोट कर लीजिए। और जब आपकी काउंटिंग कंप्लीट हो जाए तो सभी काउंटिंग सुपरवाइजर्स अपना अपना काउंट आरओ को बताएंगे कि सर हमारे पास, आपने फॉर एग्जांपल एक काउंटिंग सुपरवाइजर 300 बैलेट स्कैन कर रहा है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसके पास 300 ही आने चाहिए थे, राइट। अगर 300 स्कैन कर रहा है तो 300 आने चाहिए थे, और जबकि उसके पास आए हैं फॉर एग्जांपल 299। if you are scanning 300 ballot, here it will be 300 count, right? But your count is here is only 299, one is not there, correct. So you have to inform the RO that, see, I was supposed to scan 300 ballots, I've scanned all the ballots and the count comes to 299, but one of the ballot I was unable to scan, ठीक है, एक बैलेट में स्कैन नहीं कर पाया क्योंकि इसका फॉर्म 13C का QR कोड डैमेज था और इसके अंदर फॉर्म 13A भी नहीं था। तो ऐसे काउंट आपको आरओ को बताने हैं एंड में, ठीक है। एंड देन व्हेन आरओ गोज एंड क्लिक ऑन दिस स्कैनिंग कंप्लीट, ठीक है, यहाँ पे आरओ को 3 फिगर्स एंटर करना है, टोटल बैलेट रिसीव्ड टिल 8 AM, ठीक है, टोटल बैलेट रिसीव्ड आफ्टर 8 AM एंड टोटल ईपीबी रिजेक्टेड विदाउट स्कैन। तो अभी जो मैंने लास्ट वाला सिनेरियो बताया, तो यहाँ पे आरओ क्या डालेंगे, 1, क्योंकि वो स्कैन नहीं कर पाए थे, उनको उन्होंने बिना स्कैन किए ही रिजेक्ट किया उसको। अब इसमें फिगर्स कैसे आएंगी, मान लीजिए 8 बजे तक आपके पास 500 बैलेट्स आए, ठीक, काउंटिंग स्टार्ट हो गई, 8:30, 9, 10, 10 बजे आपके पास फिर से 100 बैलेट आ गए, तो 8 बजे वाले में आप क्या डालेंगे, 500, ठीक। टोटल ईपीबी रिसीव्ड आफ्टर 8 AM में क्या डालेंगे आप, 100, जो 8 बजे के बाद आए, ठीक है। एंड टोटल ईपीबी रिजेक्टेड विदाउट स्कैन कौन से होंगे, वो 500 में से होंगे जो आप स्कैन नहीं कर पाए, ठीक है। वो 8 रिसीव्ड आफ्टर 8 AM वाले बैलेट्स नहीं होंगे उसमें, जो बैलेट आप स्कैन ही नहीं कर पाए वो आपको इसमें एंटर करना है। Okay, please ensure that scanning of Form 13 CAB for all received EPB has been completed for your constituency by all counting supervisors. Once you mark it as complete, scanning of EPB will be disabled. तो जैसे ही आप इसको complete mark करते हैं, scanning disable हो जाएगी, आप further scan नहीं कर पाएंगे। And then only you can go to this reports, ठीक है, ई पोस्टल बैलेट प्री काउंटिंग रिपोर्ट, हियर यू कैन सी द रिपोर्ट, ओके, वैलिड, इनवैलिड, डुप्लीकेट, मैन्युअली रिजेक्टेड, इनकम्प्लीट एंड टोटल हाउ मेनी यू हैव स्कैन्ड, ठीक है। यहाँ पे आप PDF और एक्सेल में आप डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन आपका ये प्री काउंटिंग सेक्शन है, ये डिसेबल्ड हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। सो प्लीज बिफोर मार्किंग इट एज complete, please ensure you have scanned all form 13C, A and B, and very important, जब तक कि आरओ आप इसको कंप्लीट मार्क ना कर दें तब तक बैलेट को काउंटिंग टेबल पे मत लेके जाइएगा। प्लीज डू नॉट स्टार्ट द काउंटिंग ऑफ वोट्स, ओके, of this ETPBMS until unless you mark it as completed from the RO's login। क्योंकि अगर आपने काउंटिंग स्टार्ट कर दी और 2-4 बैलेट्स रह गए हो बीच में, तो फिर वो स्कैन आप नहीं कर पाएंगे, और अगर उसमें से कुछ डुप्लीकेट होगा then you will not able to detect. So please do not carry on with the scanning, with the counting until unless you mark the scanning as completed. एक्सक्यूज मी सर, गोपालगंज से बोल रहे हैं सर जी सर, ये 8 AM के पहले का और 8 AM के बाद का, और सर विदाउट स्कैनिंग, सर एक बार बता देते सर। जी 8 AM के पहले वाला सर क्लियर है कि 8 AM के पहले जो मिलेगा वो हमें क्लियर है, 8 AM के बाद वाला जो मिलेगा उसे सर हम स्कैन तो करेंगे ही नहीं। नहीं, मैंने क्या बोला, मैं बता रहा हूँ सर फिर से, एक सेकेंड। 8 बजे आपके पास 500 बैलेट्स है, ठीक है, तो आपने इसमें 8 में टिल 8 AM में आपने 500 लिख दिए।
और स्कैनिंग आपकी कंप्लीट, किसी की स्कैनिंग 10 बजे कंप्लीट हो जाएगी, किसी की 12 बजे कंप्लीट हो जाएगी, तो डजेंट मैटर, जितने बजे भी आपकी स्कैनिंग कंप्लीट हो रही है उतने बजे तक जो भी आपके रिसीव हुए उसके बाद वो आप यहाँ पे एंटर कर दें। और उसके बाद भी अगर आपके रिसीव होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपने स्कैनिंग कंप्लीट मार्क करी है उस टाइम तक 8 बजे के बाद कितने रिसीव हुए हैं वो आपको उसमें एंटर करना है। और और सर रिजेक्टेड विदाउट स्कैन में आपको कौन सा करना है कि आपके पास बैलेट वो 500 में से ही जो बैलेट थे जो आप स्कैन ही नहीं कर पाए, क्योंकि फॉर्म 13C भी स्कैन नहीं कर पाए और उसमें फॉर्म 13A भी नहीं था, ओके सर, वो वाले मतलब आपको एंटर करना है। अच्छा तीनों सर सीए तीनों अगर स्कैन नहीं कर पाएंगे तभी हम लिखेंगे सर तभी टोटल। वही, अगर आपका स्कैन ही नहीं कर पा रहे हैं कोई एक भी फॉर्म, तो आपको लिखना पड़ेगा ना कि ये वाला सिस्टम में रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ ना। अभी जो मैंने लास्ट में एक बैलेट था वो आना चाहिए था सीरियल नंबर 9 पे, लेकिन मैं उसको स्कैन ही नहीं कर पाया, उसका सीपी खराब था, ए था नहीं, तो वो कहाँ जाएगा, वो इसमें जाएगा, ठीक है, वो वाला काउंट इसमें जाएगा यहाँ पे। सर और इलेक्टर अगर सर्च करके और हम ऐड कर रहे हैं, ऐड इलेक्टर मैनुअली कर रहे हैं सर, तब भी उसको हम रिजेक्ट करेंगे सर? नहीं, तब यहाँ पे रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है उसको, इसीलिए लिखा है ना टोटल ईपीबी रिजेक्टेड विद आउट स्कैन, वो तो स्कैन करके रिजेक्ट हुआ है ना। सर स्कैन किए और हम हमारा इसके ये क्यूआर कोड स्कैन नहीं हुआ, बट हम इलेक्टर को हम सर सर्च करके अरे और यही वाला तो कोई बात नहीं, अगर आपने फॉर्म 13A पे स्कैन इलेक्टर था और आपने सी से मैनुअली सर्च करके ऐड किया तो सीरियल नंबर तो जनरेट हो गया ना उसका। ओके सर। अगर सीरियल नंबर जनरेट हो गया किसी भी बैलेट का तो वो उसमें नहीं जाएगा, जिसका सीरियल नंबर ही जनरेट नहीं हो पाया वही जाएगा उसमें। सर जो 8 बजे के बाद जो हमें बैलेट पेपर रिसीव हुए हैं आर ऑफिस में, क्या वो हमें स्कैन नहीं करने हैं? नहीं, वो स्कैन नहीं करना है, कीप इट सेपरेटली। सक्षम जी, मयंक बोल रहा हूँ, DIONIC बुलंदशहर। जी जी। और बस एक चीज ये पूछना था, स्कैनिंग कंप्लीटेड का सर ऑप्शन काउंटिंग सुपरवाइजर लॉगिन पे तो नहीं आएगा ना सर नहीं डिस्प्ले? नहीं नहीं, ठीक है, सिर्फ आरओ क्योंकि लॉगिन पे। जी सर थैंक यू सर बीट से बात कर रहा हूँ। सर बीट जी से बात कर रहा हूँ। जी। उसके स्कैनर का कुछ स्पेसिफिकेशन है क्या? कौन सा स्कैनर, कौन से देखिए, कंपनी का? कोई सी भी कंपनी का, इट इज प्लग एंड प्ले, ठीक है, कोई भी कंपनी का आप यूज कर सकते हैं। इट शुड बी QR कोड स्कैनर, वो 2 डायमेंशनल होता है। अभी लास्ट इलेक्शंस में एक ने बारकोड स्कैनर लेके आ गए और फिर वो कहने लगे स्कैन नहीं हो रहा, बाद में चेक किया तो देखा वो 1 डायमेंशनल बारकोड स्कैनर था। इट शुड बी QR कोड स्कैनर, मैनुअल ट्रिगर मोड, दैट्स ऑल। और आपको हमने डेमो सिस्टम दिया हुआ है, उसमें आप जाके चेक कर ले। थैंक यू सर, थैंक यू। Saksham ji, जी there is a small doubt from Pondicherry. yes, sir. Actually, we have sent n number of cases, whereas we received online is less than actually received. What we can do? Pardon? Actually, we received only 140, whereas in the online dashboard says as 102. No problem in that case, sir. No problem, no? Yeah, no problem. Okay, the scanning can be done. Yeah, scanning can be done. Okay, So thank that you. is why I have told everyone that please focus on the total number of EPP downloaded, not on the booked part. Okay. Okay, thank you, ji. Sir, I have a question. If we have a duplicate votes, na, will both the duplicate votes get rejected or one of them? Both. सर ये प्री काउंटिंग में कई बार लिफाफे से बाहर रहता है अपना बैलेट, तो उस केस में वो प्री काउंटिंग होगा कि नहीं? ठीक है, तो अगर आपने फॉर्म 13C स्कैन किया, ठीक है, और आपने उसको फाड़ा, उसमें आपको 2 चीज मिलनी चाहिए थी, फॉर्म 13A और फॉर्म 13B सील्ड, जिसके अंदर बैलेट होता है, राइट, वो मिलनी चाहिए थी। लेकिन आपको क्या मिला? फॉर्म 13A मिला, बैलेट पेपर मिला, फॉर्म 13B मिला, ठीक। तो आपको क्या करना है, फॉर्म 13A स्कैन करिए, उसका फॉर्म 13B स्कैन करिए, सिस्टम उसको वैलिड बोलता है, उसको जैसे मिला था वैसे ही रख दीजिए उसके अंदर, ठीक है, और डाल दीजिए वैलिड ट्रे में। जब वो जाएगा आरओ टेबल पे या काउंटिंग आरओ टेबल पे जाएगा, तब वहां स्क्रूटनी होगी उन एजेंट्स के सामने कि देखिए भैया ये तो खुला हुआ था पहले से, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। सक्षम सर, आई एम ऑडिबल? सक्षम सर, सीओ दिल्ली ऑफिस। यस यस। सक्षम सर, ये जो काउंटिंग सुपरवाइजर है, ये कौन डिसाइड करेगा? आरओ डिसाइड करेगा ना अपनी पीसी के लिए?
हाँ, वो आरओ को अपना देखना है, कौन किसको लगाना है, क्या लगाना है, आरओ कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीओ ऑफिस को बताएगा तो हमें क्रिएट करनी होगी ना उनकी आईडी। हाँ, वो लिस्ट आरओज आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ इतने काउंटिंग सुपरवाइजर लगने हैं और ये लगने हैं, क्रिएशन सी ऑफिस से होगा। एंड प्लीज डू नॉट कीप ऑन चेंजिंग द काउंटिंग सुपरवाइजर्स, ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि हमारे पास आरओ 300 लैब जैसे बैलेट या 300 पर ही बनाना है, अगर उससे कम भी आए तो तब भी बना सकता है काउंटिंग सुपरवाइजर। देखिए, अगर 300 से कम आ रहा है तो यू कैन यूज आरओ लॉगिन इटसेल्फ फॉर द स्कैनिंग। If you want, you can create the counting supervisor also, no problem in that case. सर एक काउंटिंग सुपरवाइजर से कितना स्कैनिंग का लिमिट रखेंगे? 250 से 300 रखिए सर। Hello, जी Saksham ji, this is from Murshidabad, West Bengal. Okay, I have a question. Like you said about the duplicate scenario. So suppose we are human beings, so error happens. So if we scan the same same ballot twice consecutively, so it will show the alert that it is already scanned. But if someone click on no instead of yes, so it will mark as a duplicate. In that case, it will be, but it is one entity, one ballot only. So in that case, it will be counted as valid or invalid. So in that case, you have to show it to RO, satisfy him that, sir, I have made a mistake. See here, it was this serial number is already there and it was already validated by the system once, and now I have scanned it twice, and RO will take the decision accordingly कि हाँ वो सच में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर सच में ऐसा हुआ, then it can be validated, no problem. Okay, thank you. सक्षम बिजनौर से बोल रहे थे हम जी सर। एक इसमें सिस्टम की रैम की रिक्वायरमेंट का कुछ है इसमें? नहीं सर, ब्राउजर पे चलता है सर सिस्टम। आपका सिस्टम ऐसा ना हो, हैंग ना करे बेसिकली। मिनिमम रैम की रिक्वायरमेंट क्या है इसमें? आप आजकल की डेट में 8 GB रैम आ रहे हैं, वो यूज करिए आप, नो प्रॉब्लम। तो दूसरी चीज मैं पूछ रहा था कि मल्टीपल टेबल होंगे, जैसे एक लोकसभा क्षेत्र में एक, उसमें सीरियल नंबर जो है किस तरह से डिस्प्ले होगा? उसमें 1 2 3 तो नहीं होगा, काउंटिंग सुपरवाइजर का सीरियल नंबर भी होता है शायद उसमें। वो मैंने अभी बताया था सर, अगर आरओ का रहेगा तो 1 2 3 रहेगा, काउंटिंग सुपरवाइजर का रहेगा तो उसकी आईडी प्रीफिक्स होगी उसके साथ, सीरियल नंबर के साथ। ठीक, थैंक यू। सर नमस्कार। जी सर मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ सर, डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर से। एक मेरा डाउट था सर, आपने बताया था मतलब आपने मतलब जितने भी अभी सिनेरियो बताया 7-8, एक सर मतलब सिनेरियो ये है कि अगर वो फॉर्म 13C है सर, 13C के अंदर अगर हमें सर वो मतलब वो मोर देन सर वो 13C फॉर्म मिलते हैं सर, उस केस में क्या किया जाए? क्या फिर से बताइएगा सर एक बार। सर जो फॉर्म 13C है, 13C के अंदर अगर हमें सर वो फिर से कोई अगेन सर ये 13C मिलते हैं 2-3 सर, देखिए अगर इसमें क्या करना है? करेक्ट, तो उसमें क्या है, जैसे भी आपको लिफाफे मिलेंगे, बैलेट्स मिलेंगे, तो ऑफ कोर्स अगर उसमें मल्टीपल होंगे तो आपको देख के ही पता लग जाएगा कि हाँ इसके अंदर मल्टीपल बैलेट्स होंगे, ऑफ कोर्स, राइट। तो अगर ऐसा केस है, आपको लग रहा है कि इसके अंदर एक से ज्यादा बैलेट है, तो पहले आपको उसको टीयर ऑफ करिए, ठीक है, टीयर ऑफ करिए, चेक करिए कि क्या उसके अंदर इंडिविजुअल बैलेट्स हैं क्या, 3 4 5। अगर इंडिविजुअल बैलेट्स हैं तो उनकी इंडिविजुअली स्कैनिंग करिए, ठीक। अगर इंडिविजुअल बैलेट नहीं है जी, ठीक है, अगर इंडिविजुअल बैलेट नहीं है, मल्टीपल है, मान लीजिए फॉर्म 13C था, उसके अंदर 2 फॉर्म 13A हैं एक साथ और 2 फॉर्म 13B है, ठीक है, तो उस केस में आप उसको स्कैन करिए, 13C जो आउटर एनवेलप था उसको स्कैन करिए और 13A पे जाके आप मैनुअली इनवैलिडेट करिए, उसमें अनदर रीजन सेलेक्ट करिए, मल्टीपल फॉर्म 13A 13B फाउंड इनसाइड। ओके सर, थैंक यू। सक्षम जी, हेलो, आवाज आ रही है? जी, मणिंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ से बात कर रहा था मैं। एक डाउट है सर सिनेरियो के संबंध में। 13A को 13B के अंदर डाल के दे दिया गया है, तो हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं? सर एक करके प्लीज होगा तो मोबाइल नंबर। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड सर, प्लीज वन बाय वन जस्ट रेज योर हैंड, हम आपका नाम कॉल करेंगे, उसके बाद आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेरी कीजिएगा। हेलो जी, सचिन एक सिनेरियो डिस्कस करना था एक्चुअली, लास्ट वीक जो हमें फेस करना पड़ा था। आईडी क्रिएशन में जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है सर,
वो सीओजी मोबाइल नंबर और जीओवी डोमेन या एनआईसी डोमेन की होनी जरूरी है, या कोई भी जीमेल याहू कोई भी यूज कर सकते हैं सर? सर आपकी वॉइस कट रही है, प्लीज एक एक करके, ठीक है। शिव सिंह सर, आप बताइए पहले, रुक जाइए। शिव क्वेश्चन सिंह, ये है, जो काउंटिंग सुपरवाइजर की आईडी क्रिएट होगी उसमें जो ईमेल यूज होगा वो gov.in डोमेन का होना मैंडेटरी है, या किसी भी डोमेन का ईमेल यूज कर सकते हैं सर? जीओवी होना चाहिए, तभी आपके पास ओटीपी आएगा मेल पे, अन्यथा ओटीपी नहीं आएगा। आप यूज कर सकते हो लेकिन आपके पास ओटीपी नहीं आएगा उस केस में। ठीक है, ठीक है सक्षम सर जी, बीआईओ कैंपोर बोल रहा हूँ। एक 2-3 क्वेरी है सर। अभी आपने जो बताया ईमेल आईडी से संबंधित, एक बार सर फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए, क्लियरली वॉइस नहीं आ रहा था सर। देखिए अगर आपकी गवर्नमेंट ईमेल आईडी है तो ओटीपी आपकी मेल पे भी आएगा, अगर गवर्नमेंट ईमेल आईडी नहीं है तो ओटीपी मेल पे नहीं आएगा, सिर्फ मोबाइल पे आएगा। ठीक है सर दूसरा एक चीज पूछना था इंटरनेट रिक्वायरमेंट के बारे में। वो इंटरनेट रिक्वायरमेंट जो है वो स्टैटिक आईपी के साथ चाहिए या फिर वो लीज लाइन कनेक्टिविटी ही चाहिए? आप लीज लाइन ही रखिए। एनकोर के लिए तो आपको स्टैटिक ही चाहिए होगा, ईटीपीएमएस में के लिए आपको स्टैटिक की जरूरत नहीं है। बट जो आप एनकोर के लिए सेटअप कर रहे हैं सेम ही लाइन में करिए, एक ही जैसा सब कुछ ज़्यादा बेटर है आपके लिए। तीसरा एक क्वेरी है सर, इन केस ऑफ फॉर्म 13A पे इलेक्टर या फिर अटेस्टिंग ऑफिसर का सिग्नेचर नहीं है सर, तो क्या उसको सिस्टम में हम इनवैलिड करेंगे कि सिस्टम में नहीं करेंगे? तो सर मैंने स्टार्टिंग में यही बताया, सबसे पहला लाइन स्क्रूटनी स्कैनिंग के टाइम पे नहीं करना है, आपको सी स्कैन करना है, ए निकालना है, ए पे इलेक्टर का सिग्नेचर नहीं है, टेस्टिंग ऑफिसर का सिग्नेचर नहीं है, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ स्कैन करना है, वैलिडेट करना है, अगर वैलिड है वैलिड ट्रे में डाल देना, बात खत्म। जब वो आरओ टेबल पे जाएगा, काउंटिंग आरओ टेबल पे जाएगा, वहां पे उसकी स्क्रूटनी होगी। सर डीआईओ गुमला बोल रहा था सर, गुमला जिला झारखंड से सर। जी सर सर ये बोल रहा था, एक रिक्वेस्ट करनी थी सर से। सर हम लोग को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हमारे टेक्निकल टीम्स जो है उनके साथ सर एक बार इसका डेमो करवा दिया जाए, सर्टिफिकेट का स्कैनिंग वगैरह सर, उसके बाद ऑलरेडी डेमो सिस्टम प्रोवाइडेड है। आप लोग लॉगिन करिए, रिकॉर्ड यूनिट से लॉगिन करिए, बैलेट पेपर डाउनलोड करिए, काउंटिंग सुपरवाइजर्स को बुलाइए, पीसी वाइज बुलाइए, और वहां पे आप लोग उसको हैंड्स ऑन करा सकते हैं। ओके सर। सर एक क्वेश्चन है गोपालगंज से। गोपाल सर एक क्वेश्चन है, सेक्शन अगर हमारे पास अलग अलग जो काउंटिंग से ईमेल आईडी नहीं होगा तो एआरओ सर के पास में है गवर्नमेंट ईमेल आईडी, उन्हीं का ईमेल आईडी सबके लिए यूज कर ले? हाँ यूज कर सकते हैं सर। मंडला से बोल रही हूँ सर, हमें ऑडिबल सर? गोपालगंज जी बताइए आप पहले। मैंने बताया ना आप यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, यूज कर सकते हैं। सेक्शन 3 यूजर है जी, 3 यूजर हैं तो सीरियल नंबर कैसे मेंटेन होगा आरओ लॉगिन पे? मैम अगर 3 यूजर हैं तो आरओ का लॉगिन अलग है जिसमें सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 करके आएगा। काउंटिंग सुपरवाइजर्स के केस में CS1_1 करके आएगा। काउंटिंग सुपरवाइजर की जो आईडी होती है उसके स्टार्टिंग के 3-4 कैरेक्टर्स जो होते हैं वो प्रीफिक्स होंगे सीरियल नंबर के साथ, तो अलग अलग सीरियल नंबर आएगा उसमें। आरओ के लॉगिन में वो दिखेगा कि ये किस दिखेगा, हाँ, किस काउंटिंग सुपरवाइजर के साथ डुप्लीकेट आया ये। ओके ठीक। ये काउंटिंग सुपरवाइजर का क्रेडेंशियल कहां से सर हमें मिलेगा, या फिर हमें क्रिएट करना होगा आरओ लॉगिन से? सीओ क्रिएट करके आपको देंगे। सर दमोह से एक प्रश्न था। ओके सर। काउंटिंग सुपरवाइजर का सर दमोह से एक प्रश्न था सर, ये जैसे 13A जो है ना मिस्टेक मतलब क्यूआर कोड पड़ गया जो बना है उसमें दोनों तरफ, तब उस केस में क्या करेंगे? जैसे अपन फाड़ते हैं लिफाफा, उसमें क्यूआर कोड तरफ से ही अगर वो कट गया तो मैंने बताया ना, अगर उसमें आप क्यूआर कोड की तरफ क्यूआर कोड डैमेज्ड है तो आपको इलेक्टर का नाम और 16 डिजिट ईपीबी आईडी एंटर करना है मैनुअली। अच्छा ठीक है। सक्षम बिजनौर से बोल रहा था, इसमें ईसीआई की कोई हेल्पलाइन नंबर मिलेंगे वहां पे उस दिन 4 तारीख के लिए?
मिल जाएंगे सर आपको उस टाइम पे। वो जरा शेयर कर दीजिएगा प्लीज। हाँ सर, काउंटिंग से सर 1-2 दिन 13 पहले करेंगे। सर 13A पे अगर वोटर का साइन नहीं होगा तो उसको डिक्लेरेशन कंसिडर कर सकते हैं क्या? 13A पे जस्ट फॉर स्क्रूटनी 13A पे अगर वोटर का सिग्नेचर नहीं है तो उससे इनवैलिडेट नहीं करना है, सॉरी 13C पे, ठीक है। और 13A पे अगर इलेक्टर का सिग्नेचर नहीं है तो स्कैनिंग के टाइम पे आपको इनवैलिडेट नहीं करना है, ठीक है। वो स्क्रूटनी होगी, और जो काउंटिंग ARO है उनको अच्छे से पता है कैसे स्क्रूटनी करनी है, ठीक है। इसीलिए मैंने सिर्फ सुपरवाइजर, जो काउंटिंग सुपरवाइजर जो स्कैनिंग करेंगे उन्हीं का काम बताया है। CAB स्कैन करो, वैलिड है वैलिड में रखो, इनवैलिड है इनवैलिड में रखो, बाकी कुछ ध्यान नहीं देना उसमें। सर अगर 13C स्कैन नहीं हो रहा है और अंदर 13A तो मिलता है लेकिन 13B नहीं मिलता है, तो ये फिर नॉट स्कैंड में ही जाएगा? क्यों जाएगा सर? अगर 13A मिल रहा है तो 13A से 13C की एंट्री हो जाएगी। मैं 13B नहीं मिल रहा है सर। अरे मैं कह तो रहा हूँ 13A मिल रहा है ना, 13A में इलेक्टर का नाम लिखा है, उस इलेक्टर के नाम से 13C वाले में आप जाके इलेक्टर को एंट्री करिए, फिर 13A स्कैन करिए, फिर 13B में जाके आप उसको इनवैलिडेट कर दीजिए नॉट फाउंड अगर करके। 13B नहीं मिल रहा है सर? मैं वही कह रहा हूँ, 13B नहीं मिल रहा है तब। ये सर मैं DIO साहब बोल रहा हूँ। एक सेकंड सर, जो अभी प्रीवियस जिसने क्वेश्चन पूछा आपको क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं, मैं ये कह रहा सर 13C स्कैन नहीं हुआ सर। अब रुक जाइए, 13C को होल्ड खोलेंगे होल्ड 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 13C स्कैन नहीं होता है तो क्या करते हैं? तो हम सर 13C को पहले खोलेंगे, हाँ, फिर अंदर हमें 13A तो मिल रहा है लेकिन 13B उसमें नहीं है। अब छोड़ो, B नहीं है कोई बात नहीं, A मिला। हाँ जी अगर सर। A मिलता है तो क्या करते हैं? सर अभी आपने बताया अगर A नहीं मिला है तो वो नॉट स्कैन में चला जाएगा। अगर हमारा 13B नहीं मिलता है, 13A मिलता है, तो वो भी नॉट स्कैन में जाएगा सर, जब 13B नहीं मिला जो हमें थर्ड स्टेज अरे में सर आप स्कैन रुक, करना। 13B पे मत पहुंचिए, थोड़ा आराम से। अभी आप भूल जाइए, ठीक है। आपने C आप स्कैन नहीं कर पाए, ठीक है। सिस्टम पे हैं आप, जी सर। C स्कैन नहीं कर पाए, आपने उसको फाड़ा। आपको सबसे पहली चीज क्या मिलनी चाहिए? तेरा A लेंगे सर। ये हाँ। होल्ड। 13A पे आप क्या करते हैं? अगर C स्कैन नहीं कर पाते तो क्या करना होता है आपको? तो सर हम सेलेक्ट करेंगे, उसमें नाम डालेंगे इलेक्ट्रल का। तो आप डाल पा रहे हो कि नहीं डाल पा रहे हो नाम इलेक्टर हाँ का? डाल दिया सर। तो डालिए, क्या हो जाएगा फिर उसके बाद? फिर उसके बाद हम सर नाम से उसे सेलेक्ट कर लेंगे और सबमिट कर देंगे, तो वो फिर क्या होगा? फिर क्या 13B होगा? के लिए खुलेगा सर। फिर वो अरे रुक जाइए, क्या होगा उसके बाद? उसके बाद वैलिड हो जाएगा सर वो वैलिड हो 13A। जाएगा। तेरा हाँ C वैलिड हो जाएगा भैया, रुक जाइए आराम से। तेरा C वैलिड हो जाएगा पहले, जी सर। जी सर। ठीक है। आप 13C पे सीरियल नंबर लिखेंगे 5 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसके बाद उसके बाद 13A हमने स्कैन, 13A को स्कैन करेंगे ना सर? स्कैन करेंगे। 13 इसके स्कैन कर लिया, वैलिड बता दिया हाँ उसने भी, ठीक है। हाँ अब वैलिड नेक्स्ट बता क्या करना दिया। था आपको? हाँ अब नेक्स्ट क्या करना था आपको? नेक्स्ट अब सर मैं ये कह रहा, हाँ 13B अब अगर हमारे पास नहीं है तो क्या हमें नहीं था 13A तो 13B, स्कैन करना चाहिए पहले? बिल्कुल। अरे CAB ही तो है सीक्वेंस। हाँ नहीं सर मैं कह रहा, हाँ हमने A स्कैन कर लिया सर। अरे सर CAB सीक्वेंस है। हाँ आपको ठीक सी, सर ओके। मैंने आप, अगर आपने सुना नहीं है इसका मतलब, C स्कैन करना है, फिर A स्कैन करना है, फिर B स्कैन करना है। C स्कैन किया, A स्कैन किया, B नहीं मिला तो B में जाके मैनुअली इनवैलिडेट करना है, फॉर्म 13B नॉट फाउंड। ठीक सर। तो फिर आपको इसमें विदाउट स्कैन में क्यों डालेंगे इसको? स्कैन हो तो गया ना, ये सीरियल नंबर जनरेट तो हो गया इसका। अच्छा हेलो सर, बीड से बात कर रहा हूँ। हम्म। काउंटिंग सुपरवाइजर कौन तैयार करके देगा, हम तैयार करेंगे यार सी ऑफिस? CO ऑफिस तैयार करके देगा, लिस्ट तो आप ही को देनी है। ठीक है सर। हेलो सक्षम जी। हम्म। हेलो हेलो हेलो। जी जी बताइए, सुन रहे हैं। सर जैसे हमने 13C वो स्कैनिंग के लिए हमने आया, लेकिन वो डैमेज था या फिर QR कोड स्कैन नहीं हो रहा है, देन हमने उसको ओपन किया एंड देन 13A में हमें इलेक्टर का नाम नहीं मिल रहा है, एंड देन उस केस में क्या करना है सर? तेरा ईमेल इलेक्टर का नाम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आप स्कैन ही नहीं, स्कैन भी नहीं हो रहा है वो।
अच्छा, 13C स्कैन नहीं हो रहा है और 13A में इलेक्टर का नाम ही नहीं मिल रहा है, तो आप रिजेक्ट कर दोगे उस केस में। वो फिर उसमें जाएगा रिजेक्टेड विदाउट स्कैन में। ठीक है। Hello, sir. This is from Dadra and Nagar Haveli. यस सर। सर एक्चुअली 13A में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये है कि वो डिक्लेरेशन में साइन जब वोटर वो खुद करता है, और सेकंड पार्ट ये है कि डिक्लेरेशन में वो साइन वो खुद नहीं करता है। तो इस केस में अगर वो खुद साइन नहीं करता है तो वहां पर वोटर का नाम नहीं होता है। देखिए फॉर्म 13A में दो है, ठीक है, और वो आपका ये जो चीजें हैं ये स्क्रूटनी में देखी जाएंगी। जब आप स्कैन करते हो ना उस टाइम पे नहीं देखना है ये सब चीजें। नहीं ठीक है सर, जैसे 13C जो QR कोड अगर डैमेज है तो उस केस में हमको उसको टीयर ऑफ करके अंदर का डिक्लेरेशन देखना है। तो वो दोनों देगा, फिर उस केस में दोनों भेजेगा वो। अगर वहां पे अगर आपको उसका नाम नहीं मिल रहा है तो आप उसकी एंट्री नहीं कर पाओगे। हाँ सर, एंट्री नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस केस में उसको वैलिड माना जाएगा या इनवैलिड? नहीं, इनवैलिड होगा ना, उसका नाम ही नहीं मिल रहा है, सी स्कैन नहीं हो पा रहा है, ए में आपको उसका नाम नहीं मिल रहा है, तो अभी वही केस तो अभी एक ने पूछा था कि ए में नाम नहीं मिल रहा है तो कैसे करेंगे। लेकिन सर ये तो वो क्योंकि वो खुद ने साइन नहीं कर पाया, सेकंड ऑप्शन में गया। उसमें तो सेकंड ऑप्शन में गया है तो फॉर्म 13A है ना, फिर तो उसको उस केस में दोनों भेजना है ना। उस केस में उसको ये नहीं है सेकंड वाला ही भेज दिया। इन दैट केस यू हैव टू सेंड बोथ फॉर्म 13A। तो वो उनके जो हम बैलेट भेजते हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि आपको फॉर्म 13C वापस करना है, फॉर्म 13B वापस करना है, फॉर्म 13A वापस करना है, बैलेट पेपर वापस करना है। आरओ को अपने पास नहीं रखना है। सर अगर स्कैन करने में थोड़ा दिक्कत हो या स्कैनर खराब हो गया तो हम मैनुअली ऐड कर सकते हैं इसको? मैनुअली ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। मैनुअल प्रोसेस आपको बता ही दिया कैसे करना है, लेकिन उसमें रात हो जाएगी फिर। हाँ सर। मेरा एक डाउट है। स्कैनर खराब नहीं होता वैसे इतनी जल्दी, बट इन केस मिस हैंडल करेंगे, नीचे गिर पड़ा, कुछ हो गया तो अलग बात है। सक्षम सर, मेरा एक डाउट है कि मॉक टेस्ट के लिए सर साइट कब से ओपन होगी जो अकाउंटिंग सुपरवाइजर्स की एक्सरसाइज के लिए? सर डेमो ऑलरेडी एनेबल्ड है सर, आप अभी भी टेस्टिंग कर सकते हैं सर। यूनिट आईडी वगैरह करनी हो सर तो? सर रिकॉर्ड और यूनिट आईडी जो है वो ऑलरेडी मैंने जो डेमो स्टेप्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे शाहजहांपुर का जो पीसी है, फॉर एग्जांपल पीसी नंबर 1 है, उसके अंदर 5 एसीज आते हैं, एसी नंबर 1 to 5। तो आपको ATPPMS डेमो पोर्टल पे जाना है, रिकॉर्ड ऑफिस से लॉगिन करना है। कैसे करना है? RECROS24001 AC, ठीक है, AC लिखना है। और यूनिट के केस में यूनिट ROS24001 AC, ठीक है। तो ये आपका रिकॉर्ड और यूनिट की आईडी रहेगी, सेम यूजर आईडी, सेम पासवर्ड रहेगा डेमो पोर्टल पे। इससे लॉगिन करके आपको बैलेट डाउनलोड कर लेना है, और उसमें आपका जो फॉर्म 13C, फॉर्म 13A, फॉर्म 13B, बस यही पेज आप प्रिंट कर लीजिए और आप स्कैनिंग कर पाएंगे, टेस्ट कर पाएंगे। सर ये अभी लॉगिन ट्राई किया था तो हो नहीं रहा था, अभी स्टार्ट हो जाएगा क्या फिर से? सर क्या डाला है आपने? लॉगिन आईडी बताइए एक बार, क्या डाला आपने? सर कुछ हफ्ते भर पहले जो है सर, 1 हफ्ते पहले ट्राई किया था। हाँ, तो आप लॉगिन आईडी बताइए। ऑफ कोर्स वो लॉगिन आईडी कुछ गलत बना के डाली होगी, इस वजह से लॉगिन नहीं कर पा रहे होंगे सर। सर एक बार रिपीट कर दिए, लॉगिन आईडी जैसे बनानी है। अब लॉगिन आईडी जैसे बनानी है तो आपके पीसी में, सुन लीजिए प्लीज लिसन, आपके पीसी में जितने भी एसी हैं, फॉर एग्जांपल आपका पीसी नंबर 5 है और आपके पीसी नंबर 5 में एसी नंबर 20 से लेके 25 तक है, तो आपका जो रिकॉर्ड और यूनिट आईडी क्या रहेगा? ROS24020AC, ठीक है। और ये जो आरओ कोड है, इसी में आपको जब रिकॉर्ड के लिए करना है तो REC प्रीफिक्स करना है, यूनिट के लिए करना है तो UNIT प्रीफिक्स करना है। तो आपका रिकॉर्ड ऑफिस आईडी क्या हो जाएगा? REC ROS24020AC, यूनिट ROS24020AC, ठीक है। और फिर अकॉर्डिंगली 021 022 345 25 तक आपका रहेगा। तो आपके पास 5 लॉगिन्स होंगे रिकॉर्ड और यूनिट के, जिससे आप बैलेट पेपर डाउनलोड करके फिर स्कैनिंग कर सकते हैं।
ओके, थैंक यू सर। जी सहारनपुर से एक माइनर क्वेश्चन था जी कि फॉर्म 13C स्कैन कर लिया गया, जी फॉर्म 13A के दोनों QR कोड स्कैन कर लिए गए हैं सक्सेसफुली। अब उन्होंने क्या किया कि फॉर्म 13B जो एनवेलप है उसके बिना ही वो EPB उन्होंने उसमें डाल दिया, यानी कि फॉर्म 13B नहीं है लेकिन EPB उसमें है, ई पोस्टल बैलेट है उसमें, लेकिन फॉर्म 13B नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे? सिंपल है, आपने फॉर्म 13C स्कैन किया, ठीक है, फॉर्म 13A स्कैन किया, आपको फॉर्म 13A मिला और बैलेट पेपर मिला, फॉर्म 13B था ही नहीं, तो आपको फॉर्म 13B में जाके फॉर्म 13B नॉट फाउंड कर देना, इनवैलिडेट कर देना, खत्म। ओके, थैंक सक्षम जी, ऑडिबल? यस सर। हाँ सर, दिल्ली ऑफिस से बात I'm audible? Yes sir, you are audible. I request everyone to please mute your mic if you are not speaking, so that other can speak and resolve their queries. संजय VRC बिंडकी, प्लीज म्यूट कर लीजिए माइक। सक्षम जी गुड इवनिंग, मैं नलिन कौशिक बोल रहा हूँ अमरोहा से। एक क्वेश्चन है बस मेरा। जी सर, हम लैपटॉप तो यूज कर सकते हैं विद प्रॉपर एंटीवायरस, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था हमारे साथ में 2020 में कि सब लैपटॉप हटवा के सारे वो लगवा दिए गए थे डेस्कटॉप। तो लैपटॉप तो हम यूज कर सकते हैं विद प्रॉपर लैपटॉप यूज कर कॉन्फ़िगरेशन एज सकते हैं, सजेस्टेड। कोई दिक्कत नहीं है जी। सर एट ए टाइम आरओ लॉगिन में कितने सिस्टम में हम लॉगिन कर सकते हैं एक साथ? एक लॉगिन से एक ही सिस्टम में, ठीक है, इसीलिए काउंटिंग सुपरवाइजर्स लॉगिन दिए हैं। अगर आपको एक से ज्यादा लॉगिन करना है तो काउंटिंग सुपरवाइजर क्रिएट करिए, उसकी आईडी से लॉगिन करिए। प्लीज डू नॉट लॉग इन विद द सेम आईडी और मल्टीपल। CO ऑफिस, yes, you can use one government email ID for multiple users. सक्षम जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है, इफ यू कुड प्लीज शेयर ये जो आपने सर्विस वोटर का और यूजर आईडी के लिए जो आपने बताया था, इसको भी जैसे बाकी आपका हमको मिल गया है PPT और वो सब, इसको भी अगर आप एक छोटा सा बना के दे देंगे तो इट बी इजियर फॉर अस टू शेयर। I think I would request CO ऑफिस to please share जो हमने टेस्ट स्टेप्स टू फॉलो दिया था डेमो पोर्टल के लिए, उसमें लास्ट वाले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कैसे आपको बनाना है। सर नमन से सर जी, ये सीरियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है सर। जी, ये 3 पर बैलेट हमें 3 डॉक्यूमेंट स्कैन करना होता है सर, तो जो सीरियल नंबर जनरेट होता है वो रनिंग होता होगा या एक बैलेट के लिए तीनों डॉक्यूमेंट के लिए एक ही सीरियल नंबर अलॉट होगा? तीनों डॉक्यूमेंट में एक ही सीरियल नंबर आएगा। अभी आप डेमो दिखा रहे थे सर, उसमें तो रनिंग में जा रहा था, तो रनिंग में जा रहा है लेकिन 3 डॉक्यूमेंट का सीरियल नंबर एक ही आता है उसी सीक्वेंस में। तो अभी मान लीजिए पहला बैलेट हम स्कैन कर रहे हैं, फॉर्म C हमने स्कैन किया तो उसके फॉर्म के ऊपर हमको नंबर 1 ही लिखना होगा, सीरियल नंबर 1 आया, और उसके बाद हमने उसको ओपन किया, फॉर्म A स्कैन किया, उसके ऊपर भी हमको 1 ही लिखना होगा सीरियल। हाँ ठीक है, B पे भी उसी, B पे भी वही आएगा, 1 ही आएगा। तो इस वे में जैसे हम स्कैन करते जाएंगे तो हमको ये भी क्लैरिटी होती जाएगी कि हमने कितने बैलेट स्कैन कर लिए। एग्जैक्टली। थैंक यू सक्षम सर, CO दिल्ली ऑफिस से बात कर रहा हूँ जी। ये जैसे सपोज करिए 13B का ले लीजिए, 13B पर हम पहुंचे स्कैनिंग पर और वहां पर वो स्कैन नहीं हो रहा है और उसकी जो भी आईडी है वो भी नॉट रीडेबल है, ठीक, मतलब नहीं रीड हो रही है या हो सकता है सिस्टम नहीं उसको ले रहा है। तो ऐसे केस में हम ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करके ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे रीजन, तो उसमें नॉट फाउंड वाला डालिए या फिर अदर में उसका रीजन कैसे करें? अदर्स डालिए ना, अदर्स डाल के वहां पे लिखिए कि 16 डिजिट EPB ID नॉट रीडेबल एंड QR कोड आल्सो नॉट रीडेबल। ठीक है, अब ऐसे में जब RO जब लास्ट में फाइनलाइजेशन करेगा, मतलब कि प्री काउंटिंग को क्लोज करेगा, तो उसमें उसको डालना होगा कि रिजेक्ट विदाउट स्कैन। तो क्या ये विदाउट स्कैन में जाएगा? नहीं सर, ये विदाउट स्कैन में नहीं जाएगा। प्लीज नोट एवरीवन, अगर कोई सा भी फॉर्म स्कैन हो गया, आपको सीरियल नंबर मिल गया, तो वो विदाउट स्कैन में नहीं जाएगा।
ओके ओके ओके। सर कुछ जी। केसेस में 13B का जो कंटेंट है वो 13A के साथ स्टेपल होके आता है सर, तो उस केस में इसको वैलिड मार्क करना है कि इनवैलिड करना है? 13B का जो सर ओपन कंटेंट होके है, आता है सर, हाँ उसका जो बैलेट है वो 13A के साथ स्टेपल होके आता है, तो इस केस स्टेपल में हो इसको गया तो वैलिड, कोई बात नहीं, आप 13A को स्कैन करिए, वैलिड सर आ 13A जाएगा। को स्कैन करते 13B हैं तो 13B को हम वैलिड मार्क करें कि फिर इनवैलिड करें, नहीं, क्योंकि तो उसकी 13B को भी वैलिड मार्क करिए। आप स्कैन ही कर रहे हो, आप स्क्रूटनी मत करो वहां पे। जी सर। आप स्कैन करो, सी स्कैन किया, ए स्कैन किया, ए के साथ वो बैलेट चिपका हुआ है, कोई बात नहीं, चिपका रहने दीजिए। बी स्कैन करिए और जैसे आया था वैसे ही एज इट इज उसको वापस से लिफाफे में डाल के वैलिड ट्रे में रख दीजिए। सर वो जब आरओ 13B के क्या पास है, एनवेलप जाएगा, फॉर्म में आता है, तो एनवेलप फॉर्म में नहीं आके वो A4 साइज में आता है और 13A के साथ स्टेपल होके हाँ आता है, मैं तो वही कह हम, रहा हूँ, चाहे एनवलप आए चाहे कैसे आए, अगर आपके पास वो लेबल ही आ रहा है, A4 सीट भी आ रही है, तो आप सी स्कैन करिए, ए स्कैन करिए, और जो 13B का जो लेबल आ रहा है उसको भी स्कैन करिए, ठीक है। और उसको स्कैन करके वापस एज इट इज उसके अंदर डालिए और वैलिड ट्रे में रख दीजिए। जब वो सर अकाउंटिंग आरओ के पास जाएगा तो कोर्स आरओ देखेगा कि भैया ये तो स्टेपल है, इसमें बैलेट जो एनवेलप होना चाहिए था वो है नहीं, बैलेट सील्ड होना चाहिए, सील नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा वहां जाके। जी सर, आप स्क्रूटनी मत करिए बैलेट पेपर की बस, ठीक है सर जी। अकाउंटिंग सर सुपरवाइजर। सर बीड से बात कर रहा हूँ। जी। इसका डेमो का कुछ एसओपी है क्या आपके? जो मैंने अभी बैलेट पेपर के लिए भेजा है ना सारे सीओस को, वही वही एसओपी है डेमो में भी। उसमें डेमो का कोई अलग एसओपी नहीं है, सिस्टम एक ही अच्छा है। डेमो में आपको कुछ अलग स्कैनिंग करनी है, लाइव में कुछ अलग स्कैनिंग करनी है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। बरगढ़ उड़ीसा से बोल रहा हूँ जी। सर। मेरा एक है जो 13C है, कभी कभी ऐसा होता है कि 13C एक का और एक जेरोक्स करके कुछ ऐसा करके उसके अंदर दूसरा 13A और B डाल के वो लोग भेज देते हैं। और दूसरा भी प्रॉब्लम होता है नहीं नहीं, फिर से बताइए। 13C है, 13C सेम है, हाँ मगर सेम कॉपी में दो लोग डाल दिया अपना 13A और 13B। हाँ, तो उस केस में क्या है, आप 13C स्कैन किया, आपने फाड़ा, उसके अंदर आपको दो 13A मिला, दो 13B मिला, तो सिंपल में 13A में नहीं जाके नहीं सर, एक 13C में AB था, वो स्कैन करके ले लिया। दूसरा वाला 13C जब स्कैन किया तो उसी में वो डुप्लीकेट वाला इशू आ गया। अच्छा, डुप्लीकेट वाला इशू आ गया। अच्छा हाँ, क्योंकि उसके अंदर अलग 13A और B है। नहीं, तो ऐसे नहीं करना है ना आपको। अच्छा, आप ऐसे मत करिए। अगर आपने मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में बताया था, क्वेरी थी, आप जब आप बैलेट पेपर उठाते हो आपको आराम से पता लगेगा इसके अंदर एक बैलेट है या मल्टीपल बैलेट है, ठीक है। इफ यू आर जस्ट फीलिंग दैट मल्टीपल बैलेट्स है, पहले उसको टीयर ऑफ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खोलो, चेक करो क्या इसमें मल्टीपल है। अगर मल्टीपल है तो इसको अलग अलग स्कैन करो, ठीक है। अगर मल्टीपल नहीं है, एक सेकेंड सर, अगर मल्टीपल नहीं है तो आप जो आपने टीयर ऑफ करा था उसी को पहले सी स्कैन करो एंड देन कैरी ऑन। No, Sakimji, this is Idris. I think he's from my state. Yes. That's why I'm interviewing. Sir, actually, what I am understanding is क्या कर रहे हैं वो एक सी में दो बोल रहे हैं, तो नॉर्मली ये दो सी डुप्लीकेट होके जाएगा। पहला सी आपने स्कैन किया, अगर सी में ही वो डुप्लीकेट पकड़ रहा है तो हमको फिर अंदर खोल के उसको ए निकालना नहीं है, वो मामला डुप्लीकेट में ही जाएगा। अगर दो सी आ रहे हैं, दो एक जैसे ही सी हैं, तो डुप्लीकेट होगा, भले अंदर बी और ए सही वाला हो, अंदर कोई अलग दिक्कत अलग नहीं हो। है। That is a simple answer. सर मेरा एक क्वेश्चन था, मान लीजिए 13C हमारा स्कैन हो गया और जब हमने ओपन किया 13C को तो उसमें पोस्टल बैलेट बाहर है और 13B में बाय मिस्टेक हो सकता है उसने 13A रखा है नहीं रखा, वी डोंट नो, so what we will do in that case? 13A we are not getting the 13A. It's simple. Scan form 13C. The system will say valid. Tear off the envelope. You did not find form 13A. Mark it as form 13A not found. सक्षम जी, एक सवाल है। अगर हम मैनुअली एंट्री करते हैं, मैनुअल टाइप करने पर यदि वो नाम सिलेक्ट नहीं हो रहा है, नहीं, नाम सेलेक्ट होगा सर। में क्या करें? हाँ, अगर जैसे आप मैनुअली टाइप कर रहे हैं, जो 13A पे नाम लिखा हुआ है,
ठीक है, और आपने 13C पे थे, आपने नाम टाइप किया, वो नाम मिल ही नहीं रहा, है ही नहीं, तो उस केस में उसको मैनुअली, जो आप मैंने बोला विदाउट स्कैन ही आपको उसको रिजेक्ट करना है। यस, अगर नाम उसमें जो जो 13A पे नाम लिखा है ड्रॉप डाउन मेनू में नहीं आ रहा है, तो उसको विदाउट स्कैन रिजेक्ट करना है। उसमें रीजन भी लिखना पड़ेगा कि नेम इज नॉट इलेक्टर नॉट फाउंड। ठीक है, ठीक है। सीओ ऑफिस कोलकाता जी सर, यहाँ ए एनवेलप से देख के उसको उसकी नाम की क्या चीज सर? मैं कंटिन्यू। एक सेकंड, सीओ वेस्ट बंगाल प्लीज फर्स्ट। ये क्वेश्चन था जो नया जो प्रोविजन दिया स्कैन कंप्लीट, ये तो सिर्फ आरओ लॉगिन पे आएगा ना, वो सुपरवाइजर लॉगिन में दिखेगा नहीं ना? नहीं, सिर्फ आरओ लॉगिन। और ये जो ओटीपी इनवेरिएबली वो ईमेल में आएगी, मतलब काउंटिंग हॉल में तो मोबाइल अलाउड नहीं है और मोबाइल एक्सेस भी बहुत कम होता है, तो ये ईमेल में आएगी ना ओटीपी? ओटीपी ईमेल पे आएगा इफ प्रोवाइडेड गवर्नमेंट ईमेल आईडी, तो ओटीपी ईमेल पे आएगा, और बाकी फॉर काउंटिंग सुपरवाइजर्स एंड ऑल सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर देयर फॉर कैरिंग मोबाइल फोन। ठीक है, ओके, वो एक बार भेज दीजिएगा वो। जी जी। यस, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था। एनआईसी सारण बिहार, आपको सर कुछ मैं पूछ क्वेश्चन? रहा था जी ये सर, ये पूछ रहा था सर, अगर एनवेलप सी ही नहीं है, एनवेलप ए को बी के अंदर डाल के भेज दिया गया है, तो उस केस में उसको क्या ए को मतलब एक्नॉलेजमेंट को लेके उसमें नाम को लेके हमको उसको एंट्री करना पड़ेगा सर, कि उसको डायरेक्ट उसको एनवेलप सी नहीं है का मतलब क्या है सर आपका? एनवेलप सी मतलब उसने भेजा ही नहीं है सर, सीधा वो तो बी के अंदर ही ए को एनवेलप बी के को अंदर भेज आएगा दिया ही है सर, नहीं। बी के अंदर ए को भेज दिया। तो बी तो आएगा ही नहीं, आपके पास बी में कौन सा? गलती से उन्होंने ऐसा, सुनिए, बी आपके पास आएगा ही नहीं। बी कैसे आ जाएगा? उसमें आरओ का एड्रेस कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ ईपीबी आईडी होती है बस, और कुछ नहीं होता। मतलब व्हाइट लिफाफा में सर वो कभी कभी भेज देते हैं, सफेद लिफाफा में। हाँ, उनका ईटीपीपीएस वाला जो एनवेलप जो रहता है सीएबी उस टाइप का नहीं रहता, व्हाइट लिफाफे में भी कभी कभी आ जाता है, तो उस केस में क्या उसको अंदर हम लोग को ए को, अगर देखिए उन्होंने व्हाइट लिफाफा भेजा है और उसमें आपका एड्रेस लिखा है, और अंदर फॉर्म 13A और फॉर्म 13B इंटैक्ट मिलता है, ठीक है, तो उस केस में आप फॉर्म 13A से आप उसको सर्च करके चेक कर लीजिए कि अवेलेबल है कि नहीं है इलेक्टर। वो अवेलेबल है तो ठीक है, फॉर्म 13A स्कैन करिए, फॉर्म 13B स्कैन करिए और चेक करिए वैलिड है कि नहीं है। सर एक छोटी सी क्वेरी और थी सर, गुमला डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा था सर। और सर 13A में अगर दो बारकोड है और एक बारकोड रीड कर रहा है, एक बारकोड रीड नहीं कर रहा है, तो हमको क्या 16 डिजिट ईपीपी आईडी से उसको ऐड कराना पड़ेगा सर? जी जी सर ये काउंटिंग सुपरवाइजर की जो बात हो रही है सर, तो काउंटिंग सुपरवाइजर जितने सारे होंगे मोबाइल्स पे उनकी ओटीपी आएगी सर, और उसी से वो लॉगिन करेंगे सर? हाँ सर, मोबाइल से उनका अलाउड होगा सर काउंटिंग हॉल में? वो अलग से इंस्ट्रक्शंस है, विल प्रोवाइड। चलिए ठीक है सर, थैंक सर सारण से बोल रहे जी। वो नेटवर्क रिलेटेड था सर, स्टैटिक आईपी चाहिए होगा या जनरल नेटवर्क से ही हो जाएगा? ये नहीं, स्टैटिक एटीपीपीएस के लिए स्टैटिक आईपी की जरूरत नहीं है। तो लीज लाइन बस चाहिए, ताकि स्टैटिक नेटवर्क, स्टेबल नेटवर्क चाहिए बस। स्टेबल नेटवर्क चाहिए, हाँ। कैमूर सर। यस, ये आप पूछिए, आपने हैंड रेज किया हुआ था। हो गया क्वेश्चन हो गया हमने क्वेरी कर लिया था सर। ओके ओके सर, और किसी को कोई डाउट? सर अंडमान से बोल रहे हैं सर। जी
सर जैसा आपने बताया कि हमें प्री काउंटिंग स्कैनिंग कंप्लीट करने के बाद ही काउंटिंग स्टार्ट करनी है पोस्टल बैलेट्स की। जी। अब सर हमारे पास है दो तरह की पोस्टल बैलेट अवेलेबल रहेगी, एक तो ये हमारी ईटीपीएस वाली जिसकी हमारे ट्रेनिंग हो रही है, और जो दूसरी जो मैनुअल पोस्टल बैलेट आई होगी वो भी हमारे पास काउंटिंग के लिए अवेलेबल रहेगी, काउंटिंग डेटेड। तो जो दूसरे सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर जो दूसरी जो पोस्टल बैलेट हमारी है जो सर आपकी आवाज सर जो हमारे जो पीडब्ल्यूडी इलेक्टर हैं और सीनियर सिटीजन का जो पोस्टल बैलेट है तो उसकी काउंटिंग क्या सर हम स्कैनिंग के साथ ही साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर सकते हैं? जो आपकी जो नॉर्मल पोस्टल बैलेट है ऑन ऑफिशियल्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी, पीडब्ल्यूडी और ये सब, वो तो आप 8 बजे स्टार्ट कर दीजिए उसकी काउंटिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो तो स्टार्ट हो जाएगी। ईटीपीबीएस की प्री काउंटिंग स्टार्ट होगी, जब प्री काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा आरओ उसको मार्क कर देगा कंप्लीट, उसके बाद उसकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। जी नमस्कार सर, मैं यूपी से अब जाएगी। सर अगर काउंटिंग सुपरवाइजर के उस पे ओटीपी आने में दिक्कत हो रही है तो क्या मेल पर भी सर आ सकता है? कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है वहाँ पे। सर आवाज आ रही है सर? पहले 40 फिर बोलिए, अच्छा उसकी आईडी तो आई। सर अगर गवर्नमेंट की ईमेल आईडी होगी, गवर्नमेंट की जी गवर्नमेंट की ईमेल आईडी होगी तो तभी ओटीपी आ पाएगा उसमें। नहीं सर, क्वेश्चन कर रहे थे हमारे आईआरओ साहब एक, आपको जी शायद सर, आवाज जी नहीं आ रही थी। हाँ आवाज नहीं आ रही थी सर। हाँ, गवर्नमेंट ईमेल आईडी होगी तो आएगी सर ओटीपी मेल पे। सर मेरा प्रश्न ये था, जी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। ये था कि सर कभी कभी वहाँ पे सर काफी समस्या होती है ओटीपी आने में काउंटिंग सुपरवाइजर के, तो अगर क्या उसकी सर मेल पर भी गवर्नमेंट आईडी होने पर सर मेल पर भी आ सकता है ओटीपी सर? जी आएगा। थैंक यू सर। छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन था एक। जी एक्चुअली वो जो डुप्लीकेट है यदि कोई होता है उसमें यस या नो का जो ऑप्शन था उसमें से यस का थोड़ा बता देंगे क्या उसमें होता है इसका? जब आप इमीडिएटली स्कैन करते हैं, जी जी, मान लीजिए आपने एक बैलेट स्कैन किया, ठीक है, और उसका सीएबी स्कैन कर लिया, इमीडिएटली फिर से स्कैन करेंगे तो सिस्टम पूछता है कि आपने जो भी स्कैन किया था उसी को दोबारा स्कैन कर रहे हैं। अगर आप बोलोगे हाँ तो सिस्टम कुछ नहीं करेगा, आप बोलोगे ना नो तो फिर वो उसको डुप्लीकेट मार्क कर देगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का कि इमीडिएटली जो स्कैन किया है दोबारा से फिर से ना स्कैन कर देना। यस के केस में मतलब सिस्टम कुछ नहीं करेगा? सिस्टम कुछ नहीं करेगा। आपने बोला ना कि हाँ मैंने वही बैलेट दोबारा स्कैन किया है। हाँ, अच्छा। और ये काउंटिंग सुपरवाइजर हम कितने बना सकते हैं किसी एक पीसी के लिए? 250 से 300 बैलेट पे एक काउंटिंग सुपरवाइजर। ओके सर एक क्वेश्चन था। जी सर 13C मिला है, उसको स्कैन किया, उसको वैलिड किया, उसके बाद 13A मिला, उसके अंदर उसको भी सर स्कैन करके वैलिड किया, लेकिन सर उसमें डायरेक्ट पोस्टल बैलेट है, बी है ही नहीं, 13B है ही नहीं। तो सर इस केस में क्या करना चाहिए? फॉर्म 13B नॉट फाउंड। यस, बी नॉट फाउंड बट डायरेक्ट पोस्टल बैलेट इज फाउंड। फॉर्म 13B नॉट फाउंड, दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू।
सक्षम, मैं बिजनौर से बोल रहा था। जी अपना नंबर शेयर करेंगे क्या? जी सर। 888 888 25 25 98 98 916। थैंक यू, थैंक यू। Anybody else? Although we are good to close this meeting, I think. Sir, audible? Yes, you are audible. In Form 13A, there are the two QR code. Both QR code are same or the different? They are different, and they can be scanned in any sequence. Either of them can be scanned first. Okay, there's no restriction that you need to scan left one as the first and the right one as the second, or the right one as the first, or then second one as the left one. You can scan either of them. Okay, thank you. और सर दमोह से बात कर रहे हैं सर। यदि काउंटिंग के दिन 4 तारीख को कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग डायरेक्ट आपको कांटेक्ट कर सकते हैं ना? सर हम लोग एक सपोर्ट टीम हेल्पलाइन नंबर देंगे। और हेल्पलाइन नंबर और सारी चीजें आपको कम्युनिकेट कर देंगे। ऑल्दो हम और सक्षम भी अवेलेबल रहेंगे कॉल पे। इन केस आपको सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर पे आपको मदद नहीं मिल पाती है तो यू कैन डायरेक्टली कॉल टू अस, बट ट्राई टू फर्स्ट गेट इन टच विद दोज मेंबर्स जिनका नंबर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे हेल्पलाइन में। ठीक है, एनीबडी एल्स? सौरभ जी Yes, it is sir. Sir, ये district, I would suggest district contact CO office. If it is not something, then only they will contact ECI, not directly contact ECI all the time. No, that would be the protocol, sir. हम जो भी सपोर्ट प्लान बनाएंगे we will communicate to C office and district को भी वही जाएगा, so that point of contact C office रहे. In case of any such crisis that C office is not able to help them, then only district will call us. But just because it is a single day issue, sir, so we have to be ready for each and every situation. So हम दोनों के लिए parallelly prepare करेंगे, ठीक है? Sure sir, sure sir. Anybody else? सक्षम साहब, आपका नंबर फिर एक बार रिपीट करेंगे? 888 सक्षम सर, put it in chat. ओके, चैट में लिख दे रहा हूँ। चैट से आप पिक कर लीजिए। Anybody else? सर बोल दीजिए ना। सर वो नंबर आपका सक्षम साहब आपका नंबर चाहिए था। चैट में डाल दिया, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिए। सक्षम सर। यस सर। सर 13C स्कैन नहीं होता है, और अगर इलेक्टर के नाम से डिटेल सर्च करते और सेम नाम के 2 इलेक्टर होंगे तो कैसे कंसीडर करेंगे सर? कौन सा साथ में एड्रेस भी आता है, उसके एड्रेस भी है, दोनों चीज चेक करना, नेम एंड एड्रेस। यस सर, थैंक यू सर। सर मैं प्रशांत तिवारी बोल रहा हूँ रायसेन से। जी सर, इन केस 13C का जो एड्रेस वाला पार्ट है सर, वो कट करने के बाद उसको 13A के ऊपर पेस्ट कर दिया जाता है, और 13A और B दोनों को सेलो टेप से रैप करके भेज दिया जाता है। 13A के ऊपर पेस्ट कर देंगे तो A बचेगा ही नहीं ना सर? बैक साइड में सर, बैक साइड में 13C के ऊपर, तो उसको आप 13C आप स्कैन करिए, उसके बाद A को रिजेक्ट कर दीजिए सर। अच्छा, A को रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि A भी है। ये है, आप उसमें लिखिए नॉट फाउंड इन प्रॉपर फॉर्मेट। वो तो आपका ऐसे आएगा भी, वैसे आएगा भी नहीं ऐसे, अगर आया था, आ भी जाता है। एक्चुअली लास्ट टाइम ऐसा आया था सर, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया। जी नहीं तो वो ऐसे केस में आप उसको सी को स्कैन करिए, ठीक है, और ए आपका खुला हुआ है, और बी भी उसी में स्टेपल्ड है, या पैलेट भी उसके साथ ही स्टेपल करके भेजा हुआ है। नहीं सर, बी और ए जो है वो तो प्रॉपर है सर लिफाफे में, बट सर ए के पीछे या बी के पीछे बैक साइड वाला एरिया है, उस पर एड्रेस वाला पार्ट, मतलब जो सी है, सी एनवेलप को कट करके और पेस्ट करके भेज दिया गया, जिसके कारण सर प्रॉपर एड्रेस होने के कारण हमारे पास आ तो गया। और सर उसको मैं अगर स्कैन करना चाहूँ तो स्कैन भी होगा, क्योंकि उस पर सी का पार्ट लगा हुआ है, और अदर साइड में हमारे पास बी भी अवेलेबल है और ए भी अवेलेबल है।
ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली इसके लिए क्या करना चाहिए आपको। ठीक है सर, यू कॉल मी, आई विल टेल यू। सर मोबाइल के लिए सर वो इंस्ट्रक्शंस भेजेंगे आप। जी जी सर। सर अगर 2 लॉगिन से क्रिएट करना है, प्री काउंटिंग करना है, तो सर वो एजेंट कहाँ से क्रिएट होंगे सर? सीओ ऑफिस। ओके सर। सर डीआईओ रोहतास बोल रहे हैं सर। जी सर। रिलेटेड एक चीज पूछना है सर, क्योंकि आजकल नया नया लैपटॉप आ गया है तो उसमें यानी कि केबल का कनेक्शन नहीं रहता सर। तो अगर हम लोग हाई स्पीड इंटरनेट लेते हैं तो वाईफाई से अगर 4-5 लैपटॉप कनेक्ट रहेगा तो सिस्टम काम करेगा ना सर? एटलीस्ट ये जानना सिस्टम काम करेगा, आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। हाँ जी सर। ठीक है, आफ्टर ऑल बैंडविड्थ अच्छा होना चाहिए उसका। 10 से 20 Mbps पर पीसी में आना चाहिए, उससे ज्यादा ही आना चाहिए इनफैक्ट, मिनिमम तो वो तो है। हाँ। ओके सर। I think no more doubts. If there is any doubts, you can contact your CEO office. They will resolve it. All right. And I think we can close. Yeah, yes. Thank you, Saksham ji. Okay. Thank you everyone. All the best for the counting. Thank you. Thank you, sir. जी Last question from CEO ऑफिस कोलकाता। जी सर। ये जो आप एक बार हर साल में इंस्ट्रक्शन देते थे ना, हार्डवेयर का क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या होना चाहिए, ये अगर इशू करेंगे ना कमीशन से? सर भेजा है, सीओ ऑफिस की मेल आईडी पे भेजा है। अच्छा ठीक है जी ठीक है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you sir. Thank you all for joining. थैंक यू सर। Thank you. Thank you, sir.